Great morning, students. In the last video, we discussed about the complete chapter of tissue. So today we are going to discuss about the questions of this chapter. We are coming to the back exercise questions. First question is name type of simple tissue. As we know very well, tissue it is a group of cells that perform the same type of functions. So we will call it tissue. So simple permanent tissue are of three types. बेसिकली जो परमानेंट टिश्यूज़ हैं दे आर मॉडिफिकेशन ऑफ द मैस्मेटिक टिश्यू. जब आपके मैस्मेटिक टिश्यू डिवाइड होना बंद हो जाते हैं तब वो क्या है परमानेंट टिश्यू में चेंज हो जाते हैं. सो परमानेंट टिश्यूज़ आपके थ्री टाइप के होते हैं: पैरेन्काइमा, कोलेन्काइमा, स्क्लेरेन्काइमा. पैरेन्काइमा is further divided into two type of tissue, erenchyma and chlorenchyma. So here the second question is where is the apical mesmatic found? So as you know very well, apical mesmatic is present at the growing tip of the stem and roots, and their main function is to initiate growth in new cells of seedlings at the tip of the roots and shoot. एज़ यू नो वेरी वेल कि जो आपकी मैस्मेटिक टिश्यू होता है इट इज़ वेरी हेल्पफुल फॉर द ग्रोथ ऑफ द प्लांट की ग्रोथ में बहुत ज़्यादा हेल्प होती है. सो इट इज़ प्रेजेंट एट द टिप ऑफ द प्लांट वेदर इट्स द टिप ऑफ द स्टेम और द रूट. नाउ वी थर्ड क्वेश्चन इज विच टिश्यू make up the husk of the coconut. So the husk of the coconut is made up of the sclerenchyma tissue. स्क्लेरेन्काइमा टिश्यू आपका हस्क ऑफ कोकोनट के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है. नाउ वी आर कमिंग टू द फोर्थ क्वेश्चन. व्हाट आर द कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ द फ्लोएम. फ्लोएम के कौन कौन से कॉन्स्टिट्यूएंट्स हैं? सो वी विल टॉक इट. फ्लोएम इज़ फूड कंडक्टिंग टिश्यू इन द प्लांट. इट इज़ मेड अप ऑफ द फोर कंपोनेंट. फ्लोएम आपका फोर टाइप के कंपोनेंट से बना होता है. फर्स्ट सीव ट्यूब होता है, सेकंड कंपेनियन सेल्स, थर्ड आपका फ्लोएम पैरेन्काइमा और फोर्थ होता है फ्लोएम फाइबर्स. सो दीज आर द फोर टाइप ऑफ टिश्यूज दैट आर प्रेजेंट हियर. नाउ वी विल टॉक अबाउट द टिश्यू. नाउ आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज टिश्यू. Tissue it is a group of cells that are similar in structure and are organized together to perform a specific task. टिश्यू आपका एक ग्रुप ऑफ सेल होता है जिनका सेम स्ट्रक्चर एंड फंक्शन होता है जो आपका सेम फंक्शंस को परफॉर्म करते हैं. सो दैट इज़ टिश्यू वी कॉल्ड. नाउ सेकंड क्वेश्चन इज व्हाट इज़ द यूटिलिटी ऑफ द टिश्यू. वी विल टॉक इट टुडे. So we know what is the utility of the tissue in multicellular organism. You can say in unicellular organism a single cell perform all the basic functions such as respiration, movement, excretion, digestion, etc. But in multicellular organism, cells are grouped to form tissues. These tissues are specialized to carry out a particular function of a definite place in the body. सो फॉर एग्जांपल मसल सेल्स होती हैं हमारी जो मस्कुलर टिश्यू बनाती हैं, वो हमारा मूवमेंट का काम करती हैं. नर्व सेल्स हमारी नर्वस टिश्यू बनाती हैं जो ट्रांसमिशन ऑफ मैसेज का काम करती हैं. सो देयर इज़ ए लेबर डिवीज़न इन मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म. सो दैट्स वाई वी हैव ए यूटिलिटी ऑफ द टिश्यूज़ इन दिस. As you know very well, now we are going to discuss about the tissue responsible for the movement in our body. The muscular tissue is responsible for movement in our body. And next question we are going to discuss, what does a neuron look like? A neuron is look like to a neurons are like a neuron consists of a cell body with a nucleus and cytoplasm. It has two important extension known as axon and dendrites. किसी भी नर्व सेल के क्या होते हैं, दो एक्सटेंशन होते हैं एक्सॉन और डेंड्राइट्स के लिए. An axon is a long thread-like extension of nerve cell that transmit impulse away from the cell body. The dendrites, on the other hand, are thread-like extensions of the cell body that receive a nerve impulse, and thus the axon transmit impulse away from the cell body, whereas the dendrites receive nerve impulse. This coordinate function help in transmitting impulse very quickly. इससे क्या होता है बेटा, जो एक्सोन हैं ये इम्पल्स को ट्रांसमिट करने का काम करती हैं, और जो ये डेंड्राइट्स हैं दे आर कलेक्टिंग डिफरेंट टाइप ऑफ स्टिमुलस फ्रॉम द डिफरेंट बॉडी पार्ट्स एंड दे आर गोइंग टू कलेक्ट इट एंड दे विल ट्रांसफ़र इट विद द नर्व एंडिंग्स.
नर्व एंडिंग से हम इसको ट्रांसफ़र करने का काम करेंगे। नाउ यू कैन सी द थर्ड क्वेश्चन देयर आर द 3 फीचर्स ऑफ द कार्डियक मसल्स। सो फर्स्ट फीचर इज कार्डियक मसल्स आर इनवॉलेंट्री मसल दैट कॉन्ट्रैक्ट रैपिडली बट डू नॉट गेट फैटिग। मतलब कि कार्डियक मसल आपकी इच्छा से काम नहीं करती, दे आर इनवॉलेंट्री मसल्स, और वो कॉन्ट्रैक्ट बहुत जल्दी कॉन्ट्रैक्ट होती हैं, फिर भी उनमें थकावट नहीं होती, दे डोंट फैटिग। द नेक्स्ट आपका है द सेल्स ऑफ कार्डियक मसल्स आर सिलेंड्रिकल ब्रांच एंड यूनिन्यूक्लिएटेड। मतलब जो कार्डियक मसल होती हैं वो सिलेंड्रिकल होती हैं, ब्रांच होती हैं और यूनिन्यूक्लिएटेड मतलब सिंगल न्यूक्लियस उसमें प्रेजेंट होता है। नेक्स्ट वर्ड देयर जो कार्डियक मसल्स होती हैं दे आर रिलैक्सेशन एंड कॉन्ट्रैक्शन ऑफ द हार्ट में यूज़ किए जाते हैं। सो दीज आर द 3 प्रॉपर्टीज़ ऑफ द कार्डियक मसल्स। Now we are coming to the fourth question, that's it, what are the functions of the areolar tissue। एरियोलर टिश्यू के फंक्शंस क्या होते हैं? फंक्शंस ऑफ एरियोलर टिश्यू आर इट हेल्प इन सपोर्टिंग इंटरनल ऑर्गन्स, मीन्स जितने भी इंटरनल ऑर्गन्स हैं सबको सपोर्ट करने का काम आपका एरियोलर टिश्यू करता है। इट हेल्प इन रिपेयरिंग द टिश्यूज़ ऑफ स्किन एंड मसल, ये हमारी जो टिश्यू होते हैं उनकी स्किन को रिपेयर करता है, मसल्स की स्किन को रिपेयर करने में हेल्प करता है। सो दिस इज़ द मेजर फंक्शन ऑफ द एरियोलर टिश्यू। एरियोलर टिश्यू न केवल स्पॉटिंग का काम करता है बल्कि ये क्या करता है, रिपेयरिंग का काम करता है। वट एवर द वियर टीयर इज हैपन इन स्किन और मसल सेल दैट इज़ रिपेयर्ड बाय द हेल्प ऑफ द एरियोलर टिश्यू। नाउ we will take the question, what are the differences between parenchyma, collenchyma and sclerenchyma on the basis of their cell wall? So as we know very well, cell wall of parenchyma is primary, but collenchyma it's a primary, and but in sclerenchyma it is the secondary cell wall because it becomes very old. The cell have a thin wall and made up of cellulose in case of the parenchyma, but collenchyma it is the cell walls are thickened due to the deposition of the protein layer। जैसे जैसे प्रोटीन लेयर आपकी डिपॉजिट होती रहती है वो आपकी लेयर सेल वॉल आपकी थिक होती रहती हैं। सेल वॉल इज़ वेरी थिक ड्यू टू द लिग्निन डिपॉजिट। जैसे जैसे लिग्निन आपका डेड सेल पे डिपॉजिट होता है तो उसके डिपोजिशन के कारण वो डेड होती चली जाती हैं। तो स्क्लेरेंकाइमा पे लिग्निन आपका डिपॉजिट होता है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट आर द फंक्शंस ऑफ स्टोमेटा। एज यू नो वेरी वेल द स्मॉल पोर्स प्रेजेंट इन एपिडर्मिस ऑफ द लीफ आर स्टोमेटा। सो स्टोमेटा आर enclosed by the 2 kidney shaped cell that is called as guard cell। सो फंक्शन स्टोमेटा के फंक्शन क्या होते हैं? एक्सचेंज ऑफ गैसेस, फॉर एग्जांपल कार्बन डाइऑक्साइड एंड ऑक्सीजन they are with atmosphere, and loss of water in the form of water vapors during transpiration. So these are the functions of the stomata. Now we have to draw the muscle fibers. We have 3 types of muscle fibers: striated muscles, smooth muscles, and cardiac muscles. So you have to learn these diagrams with yourself. Thank you and have a nice day.